Okay, so we are starting with microeconomics today, class 11 का first chapter, microeconomics introduction. Class 11 basically has two parts, microeconomics and statistics. So we are starting with microeconomics का first chapter, which is an introduction. The first concept is what is an economy. इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली एन इकोनॉमी. सो इकोनॉमी, okay, so economy is a system. Economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Economy एक system है which provides people the means to work and earn a living. An economy is a system, एक ऐसा system जो people को provide करे क्या means to work and earn a living. मतलब एक ऐसा system जो people को means to work provide करे, कि उनको जॉब्स प्रोवाइड करे. मीन्स टू वर्क मतलब आए, काम करें और पैसे कमाएं, अर्न अ लिविंग, है ना. इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई कि इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस. So economy is basically a system of organizations and institutions that either facilitate or play a role in production, consumption, and capital formation. Economy can be defined as a system of organizations and institutions that either facilitate or play a role in production, consumption, and capital formation. These three processes are basically also known as the three vital processes of an economy. तो आपको ये समझ में आ गया कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, है ना. इसको थोड़ा इलाबरेट करते हैं. So an economy is a system which provides people क्या means to work and earn a living. So an economy is basically a system which provides people the means to work and earn a living. मतलब क्या हुआ कि it provides people an opportunity कि भाई आओ, काम करो, पैसे कमाओ. As simple as that. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो अपॉर्चुनिटी दे पीपल को कि भाई तुम आओ, काम करो और पैसे कमाओ, इज कॉल्ड एन इकोनॉमी, है ना. तो आप समझ लीजिए फैक्ट्रीज हो गए, शॉप्स हो गए, माइंस, ऑफिसेज, रेलवेज, etc. are collectively called what? Economy. क्यों? Because economy is basically an economy is a system of organizations and institutions. Organizations and institutions. क्या क्या organizations हो सकते हैं? Like factories हो गए, shops हो गए, mines हो गए, railways हो गए, offices हो गए. So these are collectively called an economy. क्यों? Because it provides people the means to work. फैक्ट्री में जाके आप काम कर सकते हैं एंड अर्न अ लिविंग. उस काम के आपको पैसे भी मिलेंगे. अगर उस काम के आपको पैसे नहीं मिले तो वो इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होगा. देन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ बेसिकली चैरिटी. सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग.
है ना। तो अगर इकोनॉमी को पीपल को प्रोवाइड करना है क्या, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, देन द इकोनॉमी हैज़ टू परफॉर्म 3 vital processes, which is production, consumption, and capital formation, जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो इकोनॉमी इज बेसिकली अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, and to provide people the means to work and earn a living, the economy has to perform 3 vital processes, which are production, consumption और इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। सो ये 3 वाइटल प्रोसेस हो गए। एक हो गया प्रोडक्शन, दूसरे हो गया कंजम्पशन, एंड द थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। लेट अस इलैबोरेटली स्टडी व्हाट आर द 3 वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि इकोनॉमी क्या होता है। एन इकोनॉमी इज बेसिकली अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, कि आओ काम करो और पैसे कमाओ। काम करो तो पैसे ज़रूर कमा के जाना, अगर पैसे नहीं कमा पाए इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको काम के पैसे ही नहीं मिल रहे इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। सो इट प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। It is a system of organizations and institutions that either facilitate or play a role in the 3 vital processes, which is production, consumption, capital formation. अब 3 vital processes क्या होते हैं उसको elaborately पढ़ रहे हैं। The first is production, second consumption, third investment और capital formation। इसको याद कर लीजिए कि 3 vital processes of an economy क्या होते हैं, production, consumption and capital formation। अब production, the performance of an economy is basically judged by its level of production. The performance of an economy is basically judged by its level of production. मतलब richness और poverty is judged by the amount of goods and services it is able to produce. जो इकोनॉमी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है वो ज़्यादा रिच है ना। जैसे चाइनीज़ इकोनॉमी, the level of production in Chinese economy is much more than in Indian economy, and therefore the Chinese economy is much more richer as compared to the Indian economy because they produce much more than what India produces. Now, the performance of an economy is basically judged by its level of production. Okay, richness or poverty is judged by the amount of goods and services it is able to produce, because more the goods and services it will produce, the more will it be able to sell. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी उतनी ज़्यादा रिच होगी, है ना। द फर्स्ट वाइटल प्रोसेस इज प्रोडक्शन, एंड द लेवल ऑफ द रिचनेस ऑफ एन इकोनॉमी इज बेसिकली जज्ड बाय इट्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन। However, production excludes some activities despite the fact that it satisfies human wants, because no payment is made for the same. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग, अगर कोई आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसको पैसे नहीं मिल रहे, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो however, production excludes some activities despite the fact that it satisfies human wants because no payment is made for the same, है ना। For example, services of a housewife. Services of a housewife satisfies human wants, but since no payment is made for the same, it cannot be counted under production and hence it is not a part of economy, है ना। सो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्शन basically includes all kinds of goods and services which are exchanged for money. So production includes all kinds of goods and services which are exchanged for money. Second में हम लोग आ रहे हैं, what is the second one?
The second one is consumption. So consumption can be defined as the act of satisfying one's wants by the use of goods and services. मतलब जो goods and services यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, जो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होंगे वो कंजम्पशन में यूज़ होंगे. So it is the act of satisfying one's wants by use of goods and services. If no consumer exists, no one will produce. It is thus the end of all productive activity. So consumption can be defined as the end of production activity. Consumption may be defined as the end of production activity. है ना? तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली कंज्यूम हो रहा है. If there is no consumption, there is no use of producing goods and services. क्योंकि अगर प्रोड्यूस करते रहे कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ देयर इज नो कंजम्पशन. थर्ड पॉइंट में आते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट में बी डिफाइंड एज द एडिशन टू द टोटल कैपिटल इन अ ईयर. कि आपका जो टोटल कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है उसमें कुछ अगर एडिशन हो, जितना पैसा बिजनेस में ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें कुछ एडिशन हो, उसको बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन. क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी है उसमें कुछ एडिशन हो रहा है तो कैपिटल फॉर्म हो रहा है, तो इट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी कुछ पैसा लगा हुआ है, अभी कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन विच बेसिकली मीन्स द सेम थिंग इज द एडिशन टू द टोटल कैपिटल इन अ ईयर. एडिशन टू टोटल कैपिटल इन अ ईयर हो क्यों रहा है आपका? बिकॉज एन इकोनॉमी डज नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ वॉट इट प्रोड्यूसेस. In order to grow, it should start saving also. तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ तो कंज्यूम हो रहा है, कुछ सेव हो रहा है. या आप बोल सकते हैं कि एक आदमी अगर किसी के पास 100 रुपीज़ हैं तो कंजम्पशन में वो कितना पैसा लगा रहा है, समझ लीजिए 70 रुपीज़ का कंज्यूम कर रहा है और 30 रुपीज़ सेव कर रहा है अपने जेब में. एक आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है, इट इज़ स्पेंडिंग ₹70 इन कंजम्पशन एंड सेविंग ₹30. तो ये जो 30 है दिस विल बी चैनलाइज्ड. इसको चैनलाइज कर सकते हैं इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. कि ये 30 रुपीज़ तो वो बचा लिया, ये 30 रुपीज़ बचा के क्या करेगा, इसको वापस बिजनेस में लगा देगा, तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा. सो दिस विल लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन. सो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको सेव करेंगे और सेव करके उसको चैनलाइज करेंगे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब उसको बिजनेस में वापस लगा देंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन और बढ़ सके और इंक्रीज हो सके. क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने से ही इकोनॉमी की रिचनेस बढ़ेगी. सो वी हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल. कि अगर आपका कैपिटल बड़ा होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना. तो 3 वाइटल प्रोसेसेस में फर्स्ट इज प्रोडक्शन. जो प्रोड्यूस होगा वो कंज्यूम होगा. सब तो कंज्यूम होगा नहीं, कुछ सेव भी होगा. तो जो सेव होगा दैट विल लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन. और फिर उस कैपिटल से प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है. सो दीज आर बेसिकली द 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि 3 वाइटल प्रोसेसेस है क्या, विच इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. ये 3 वाइटल प्रोसेसेस इकोनॉमी को बेसिकली परफॉर्म क्यों करने हैं? बिकॉज द इकोनॉमी हैज़ टू प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. इकोनॉमी को अगर पीपल को प्रोवाइड करना है क्या, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, क्या प्रोवाइड करना है, मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, तो इकोनॉमी को परफॉर्म करने पड़ेंगे 3 वाइटल प्रोसेसेस विच इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना. तो आपने ये समझ लिया कि इकोनॉमी है क्या. इकोनॉमी बेसिकली सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, or a system of organizations and institutions that either facilitate or play a role in the 3 vital processes, which is the production, the consumption, and capital formation.
अब आपने ये समझ लिया कि इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, कि ये क्लास आप कर ही क्यों रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इसका एक सिंपल शॉर्ट आंसर है टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। So why do you need to study economics? Because you need to solve economic problems. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आप ये तो समझिए कि इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ जिसको सॉल्व करना है, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ के वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सो वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एकदम सिंपल शॉर्ट आंसर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। अब व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Economic problem can be defined as a problem of choice which arises due to इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अब बाद में इलैबोरेटली पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, हाउ इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और वो अराइज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज अनलिमिटेड human wants. Second is scarcity of resources. And third is because resources have alternative uses. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स, मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए उन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। मतलब रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी, व्हाट इज स्केर्सिटी? स्केर्सिटी मींस लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ समथिंग। स्केर्सिटी मतलब कमी, कोई चीज़ की कमी होना, मतलब कोई चीज़ की स्केर्सिटी होना। स्केर्सिटी मतलब कोई चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जितनी वो चीज़ चाहिए उससे कंपेरेटिवली बहुत कम क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, इसलिए उस चीज़ की स्केर्सिटी है ना। ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, मतलब रिसोर्सेज आर स्केर्स। इन एडिशन टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक और प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है एक रिसोर्स को आप एक से ज़्यादा यूज़ में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक रिसोर्स है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये इज़ अ रिसोर्स। मनी इज़ अ रिसोर्स। मनी से आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। सो मनी इज़ अ रिसोर्स। मनी की पहले ही आपके पास स्केर्सिटी है कि आपको चाहिए तो 1,000 रुपये थे, क्योंकि आपको ख़रीदनी बहुत चीज़ें थी, लेकिन आपके पास है 100 रुपये, तो रिसोर्स ऑलरेडी स्केर्स है। लेकिन वो 100 रुपये भी आपके पास है तो उसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कि वो 100 रुपये से या तो आप एक चॉकलेट खरीद सकते हैं या आप एक पेन खरीद सकते हैं। तो वो 100 रुपये से आप चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, एक पेन भी खरीद सकते हैं। तो अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको पेन खरीदना है या चॉकलेट खरीदना है। सो बिकॉज ह्यूमन वांट्स बहुत अनलिमिटेड है और मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स लिमिटेड है, और जो मीन्स हैं उसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए आपको हमेशा चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से वांट्स को मैं सेटिस्फाई करूं। कि क्या आज पेन खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है या चॉकलेट खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है? किससे? वो 100 रुपये से।
क्योंकि अगर मेरे पास 200 रुपये होते तो मैं एक पेन भी खरीद लेता, एक चॉकलेट भी खरीद लेता। लेकिन क्योंकि मेरे पास रिसोर्स स्केर्स है कि मेरे पास 100 ही रुपये हैं, अब उस 100 रुपये से मैं या तो मैं पेन खरीद सकता हूँ या मैं चॉकलेट खरीद सकता हूँ। तो अब मुझे बेसिकली चूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेरे पास आ गई कि वो पेन खरीदूँ या चॉकलेट खरीदूँ। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ बेसिकली कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए। सो वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स which is basically a problem of choice which arises due to unlimited human wants because of scarcity of resources, and because resources which are scarce can also be used for alternative uses। है ना, इसको थोड़ा और इलेबोरेटली देखते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या जिसको हमें सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स पढ़ के। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो मैंने आपको बता दिया कि इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Economic problem can also be defined as a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिससे हमें सेटिस्फाई करनी है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज भी है कि रिसोर्स तो है लिमिटेड, रिसोर्स तो है 100 ही रुपये, उसके ऑल्टरनेटिव यूज भी है, या तो पेन खरीद लें या चॉकलेट खरीद लें। रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ है, लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। कि ह्यूमन वांट्स तो ये है कि मेरे को पेन भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो 100 ही रुपये हैं, तो मेरे को अब चूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई कि मैं या तो पेन खरीद सकता हूँ या चॉकलेट खरीद सकता हूँ, दोनों मैं नहीं खरीद सकता, है ना। नाउ थ्री मेन रीजंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? क्यों हम सारा सामान नहीं खरीद सकते? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज भी अगर अनलिमिटेड होती तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये कभी अराइज ही नहीं होती। ये कभी अराइज नहीं होती, हमें कभी चूज़ करना ही नहीं पड़ता कि पेन खरीदें या चॉकलेट खरीदें, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। कि हमारे पास इतना पैसा है कि अब हम सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि भाई पेन खरीदें या चॉकलेट खरीदें। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, ये रिसोर्सेज जो है ये अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड बिकॉज दोज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, तो हमें चूज़ करना पड़ रहा है, and which gives rise to the problem of choice, which is basically called the economic problem। आई होप आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं कि क्लास स्टार्ट कैसे हुई थी। सो बेसिकली वी स्टार्टेड विद इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो पीपल को प्रोवाइड करे मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस जो मीन्स टू वर्क और अर्न अ लिविंग प्रोवाइड करे और जो फैसिलिटेट करे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल रहे थे कि दीज आर थ्री वाइटल प्रोसेसेस, है ना। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो पीपल को मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग प्रोवाइड कर रही है,
मतलब आओ काम करो पैसे कमाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटी पीपल को दे रही है। तो फैक्ट्रीज, शॉप्स, माइंस, ऑफिसेज, रेलवेज या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पीपल को ये अपॉर्चुनिटी दे कि आओ काम करो और पैसे कमाओ, मतलब मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग प्रोवाइड करे, उसको हम लोग कलेक्टिवली इकोनॉमी बोलेंगे। एंड इकोनॉमी परफॉर्म्स थ्री वाइटल प्रोसेसेस, मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली थ्री वाइटल प्रोसेसेस जो हैं, उसमें प्रोडक्शन जो है इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। मतलब जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं हो रही वो प्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है, एंड हेंस वो इकोनॉमी का भी पार्ट नहीं है। कंजम्पशन के बारे में हम लोग देखा था कि कंजम्पशन इज बेसिकली द एंड ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना। प्रोडक्शन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ कंजम्पशन शुरू होता है। अगर कंजम्पशन हो ही नहीं तो प्रोड्यूस करके कोई मतलब नहीं है। सो कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन। थर्ड हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारे पास है हम सब कंजम्पशन में नहीं लगा देते, कुछ हम सेव भी करते हैं, और जो हम सेव करेंगे उसको चैनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में। और जो इन्वेस्टमेंट हम लोग बिजनेस में करेंगे, जो कैपिटल फॉर्म करेंगे, उसको प्रोडक्शन में वापस यूज़ किया जा सकता है। सो प्रोडक्शन इज़ बेसिकली डन फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन से जो बचेगा उसे कैपिटल फॉर्मेशन में लगाएंगे और वो कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्शन में वापस हेल्प करेगा। दिस भी स्टडीड अबाउट इकोनॉमी क्या होते हैं, इकोनॉमी के थ्री वाइटल प्रोसेसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करनी है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो क्यों अराइज होते हैं, बिकॉज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो है उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दोज रिसोर्सेज आर स्केर्स। On top of that, those resources also have alternative uses. रिसोर्सेज तो स्केर्स है ही, लेकिन उसके ऊपर वो रिसोर्स को एक नहीं बहुत सारे यूजेस में लगा सकते हैं। तो अब ये चूज करना पड़ेगा कि उस स्केर्स रिसोर्स को किस यूज में लगाए। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई जो कि है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, बिकॉज ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है, एंड रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जो थ्री मेन रीजंस हैं ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसको हम इलेबोरेटली स्टडी करते हैं अभी। द फर्स्ट बीइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ये तो आप सब लोग फील करेंगे कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। आपकी जो वांट्स है वो फुल्ली सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आपकी एक वांट सेटिस्फाई हो गई तो आपकी दूसरी वांट अपने आप अराइज हो जाती है ना। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अपीयर्स सून। तो एक आदमी कभी भी एकदम सेटिस्फैक्शन के मोड में नहीं रह सकता, बिकॉज उसके सारे वांट्स कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। Human wants are never ending, they can never be fully satisfied. If one want is satisfied, another appears soon. Also, human wants differ in priority. Human wants differ in priorities, that is, some wants are more important as compared to others. When the more important wants get satisfied, human beings move towards less important ones. है ना, कि human wants जो है they differ in priorities, that is, some wants are more important as compared to other wants. कि ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग तो है ही, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट है, कि कोई वांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई वांट कम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीएसटी पढ़ लिया या शायद पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि मैस्लोज लॉ ऑफ नीड हायरार्की क्या है। व्हाट इज़ द मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी में मैस्लो ने कहा है
कि बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ वांट्स होती हैं. द फर्स्ट आर फिजियोलॉजिकल वांट्स, सेकंड इज सेफ्टी, थर्ड इज लव बिलोंगिंगनेस, फोर्थ एस्टीम नीड्स एंड फाइनल आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो मैस्लो ने ये कहा है कि जो फिजियोलॉजिकल वांट्स है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर वो सेटिस्फाई हो गई तभी आदमी ऊपर मूव करेगा दूसरी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज सेफ्टी. अगर सेफ्टी सेटिस्फाई हो गया तब वो ऊपर मूव करेगा कि भाई लव एंड बिलोंगिंगनेस भी चाहिए. अगर लव एंड बिलोंगिंगनेस उसके पास है तब वो ऊपर मूव करेगा ये सोच के कि भाई अब सोसाइटी में इज्जत भी होनी चाहिए. और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है. तो ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज, मतलब फिजियोलॉजिकल वांट्स जो है आपके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजियोलॉजिकल वांट्स बेसिकली इंक्लूड्स फूड. अगर आपके पास फूड ही नहीं है तो आपको क्या मतलब कि आपकी सोसाइटी में इज्जत है कि नहीं है, कि आपको कोई प्यार करता है कि नहीं करता है, कि आप सोसाइटी में सेफ है कि नहीं है. तो पहले तो ज़रूरी है कि खाना होना चाहिए. अगर खाना होगा अपने पास तो ही हम सोच पाएंगे कि भाई हमें कोई प्यार करने वाला भी हो या मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत भी हो, मेरी कोई फैमिली भी हो. वो तो तभी सोच पाएंगे जब आपके पास खाना हो. अगर आपके पास खाना ही नहीं है तो सोसाइटी में इज्जत का आप क्या करेंगे. तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि फिजियोलॉजिकल वांट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टीम वांट्स से. क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिकल वांट्स सेटिस्फाई होने के बाद ही आप एस्टीम वांट्स के बारे में सोच सकते हैं. तो फिजियोलॉजिकल वांट्स और एस्टीम वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज़. मतलब ह्यूमन वांट्स जो हैं दे डिफर इन प्रायोरिटीज़. सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब फिजियोलॉजिकल वांट्स जो हैं आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वांट्स. मतलब सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल वांट है. हाँ, अगर आपकी फिजियोलॉजिकल वांट सेटिस्फाई हो गई तब आप सेफ्टी की तरफ मूव करेंगे कि आपके पास खाना है. अब आप सोच रहे हैं कि एक सेफ शेल्टर होना चाहिए मेरे पास रहने के लिए. आपके पास खाना भी है, घर भी है, आप सेफ भी फील कर रहे हैं सोसाइटी में, तब आप सोचेंगे कि लव एंड बिलोंगिंगनेस भी ज़रूरी है. अगर आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली वांट सेटिस्फाई होगी तब आप सोचेंगे कि हाँ सोसाइटी में इज्जत भी ज़रूरी है. लेकिन अगर आपके पास खाना ही नहीं है तो आप सोसाइटी में इज्जत के बारे में कभी नहीं सोचेंगे. तो ये बेसिकली यही दिखा रहा है कि ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज़. कि ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग तो है ही, लेकिन वो प्रायोरिटीज़ में भी डिफर करती हैं. जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट्स सेटिस्फाई हो गए तभी हम लोग लेस इंपॉर्टेंट वांट्स की तरफ मूव करते हैं. बट इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैव हैड बीन ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, कि आपके लिए फिजियोलॉजिकल वांट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी वांट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लव होना भी ज़रूरी है, इज्जत होना भी ज़रूरी है, देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस. कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पहले फिजियोलॉजिकल वांट्स को सेटिस्फाई करें या पहले सेफ्टी वांट्स को सेटिस्फाई करें या पहले स्टीम वांट्स को सेटिस्फाई करें या क्या करें. क्योंकि सबकी सेम प्रायोरिटीज़ है. तो अगर सेम प्रायोरिटीज़ कोई आपके वांट्स की होती तो आप कभी भी चॉइस नहीं कर पाते. आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है कभी सॉल्व ही नहीं हो पाती. क्यों नहीं सॉल्व हो पाती? बिकॉज ऑल वांट्स आर ऑफ सेम प्रायोरिटी. लेकिन क्योंकि रियलिटी में ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटी, सो इट इज़ पॉसिबल टू मेक चॉइस and therefore economic problems can be solved. तो हमने ये पढ़ा था कि 3 main reasons for existing of economic problems include unlimited human wants, scarcity of resources and resources of alternative uses. अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में हमने ये देख लिया कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड तो है लेकिन वो प्रायोरिटी में भी डिफर करते हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑल्सो दे डिफर इन प्रायोरिटीज़. अगर वो प्रायोरिटीज़ में डिफर नहीं करते तो इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस. सेकेंड रीज़न की तरफ बढ़ते हैं, द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का. सेकेंड इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्केर्सिटी मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. मतलब जो फुल रिसोर्सेज चाहिए हमें डिमांड फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड क्वांटिटी में है. ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इतनी बड़ी वांट्स है लेकिन रिसोर्सेज इतने से हैं
इस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट resources to satisfy those wants are limited, है ना। resources are limited in relation to their demand and economy cannot produce all what people want। इकोनॉमी सब कुछ इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमी को चॉइस ही नहीं करना पड़ता कि क्या प्रोड्यूस करें क्या प्रोड्यूस नहीं करें। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस वॉट ऑल वॉट पीपल वॉन्ट। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज किस यूज़ में लगाया जाए कि ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो, कितनी मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो। क्या ऑल ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सकते हैं क्या? नहीं, ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज जो कि स्केर्स है उसको ऐसे यूज़ में लगाओ, ऐसे यूज़ में लगाओ कि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सके। सारे सेटिस्फाई नहीं हो सकते लेकिन मैक्सिमम उस रिसोर्स से सेटिस्फाई हो सके। मतलब रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, मतलब चॉइस करो कि उस रिसोर्सेज को किस यूज में लगाया जाए, है ना। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज बेसिकली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रिसोर्सेज स्केर्स हैं इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। अगर रिसोर्सेज स्केर्स नहीं होते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते ही नहीं। In addition to being scarce, also resources have alternative uses. Resources have alternative uses. कि अगर आपके पास लैंड है तो आप ये सोचेंगे कि लैंड को लगाया किस में जाए। लैंड में या तो वीट उगा सकते हैं, या बिल्डिंग बना सकते हैं, या राइस उगा सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स किस यूज़ से हो रही है, कि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बिल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है या उनके लिए राइस खाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है तो ऑफ कोर्स उस रिसोर्सेस को आपको बिल्डिंग में ही लगाना चाहिए ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सके। लेकिन ऑल ह्यूमन वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हो सकता है उस एरिया में लोग को बिल्डिंग भी चाहिए, राइस भी चाहिए, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी बिल्डिंग है। तो आप बिल्डिंग बनाएंगे ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। लेकिन ऑल ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि उस एरिया में लोग को राइस भी तो चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए इसलिए उस एरिया में बिल्डिंग बना के मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, है ना। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि पेट्रोल ऑलरेडी स्केर्स है, रिसोर्स तो स्केर्स है ही, लेकिन इन एडिशन टू स्केर्सिटी इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स, मशीन्स, रेलवे इंजन्स, एयरप्लेन्स, फैक्ट्रीज, पावर जनरेशन। तो अब डिसाइड करना पड़ेगा कि उस पेट्रोल जो कि ऑलरेडी स्केर्स क्वांटिटी में है उसको व्हीकल्स में यूज़ करें या मशीन में यूज़ करें या रेलवे इंजन में यूज़ करें या एयरप्लेन में यूज़ करें या फैक्ट्री में लगा दें या पावर जनरेशन में लगा दें। तो एक चॉइस करनी पड़ेगी कि उस रिसोर्स को किस जगह लगाया जाए। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस उस रिसोर्स के होते ही नहीं तो चॉइस करनी ही नहीं पड़ती ना। अगर पेट्रोल है जो सिर्फ व्हीकल में यूज़ हो सकता है तो आपको उसको व्हीकल में ही डालना पड़ेगा। तब आप उससे मशीन नहीं रन कर सकते या रेलवे इंजन नहीं रन कर सकते या एयरप्लेन में नहीं डाल सकते या पावर जनरेशन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उस रिसोर्स का एक ही यूज़ है, क्या, कि वो व्हीकल में ही डलेगा। लेकिन क्योंकि रियलिटी में एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं इसलिए आपके पास द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सेकेंडली, लैंड जो है वो स्केर्स क्वांटिटी में है, लेकिन इन एडिशन टू स्केर्सिटी अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन या बिल्डिंग अ ड्वेलिंग प्लेस या बिल्डिंग अ फैक्ट्री। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लैंड कल्टीवेशन में यूज़ करें या फैक्ट्री बनाने में यूज़ करें या घर बनाने में यूज़ करें। मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वापस अराइज हो गई। सो वेन एवर अ कमोडिटी इज चूजन फॉर वन यूज अदर वैल्यूएबल यूजेस विल हैव टू बी रिजेक्टेड। कि अगर लैंड को आप
कल्टीवेशन में यूज़ कर दिए तो ड्वेलिंग प्लेस तो बना नहीं पाएंगे, फैक्ट्री तो आप बना नहीं पाएंगे। तो आपके पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, विच इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि वो जो लैंड है उसको आप कल्टीवेशन में यूज़ करिए या ड्वेलिंग प्लेस में यूज़ करिए या बिल्डिंग या फैक्ट्री में यूज़ करिए। मतलब क्योंकि उस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, इसलिए वो रिसोर्स एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट कर रही है, विच इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक रीज़न ये भी है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के थ्री यूजेस क्या हैं? फर्स्टली अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकेंडली स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्डली रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करनी है। इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करनी है? क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब हम आ जाते हैं कि इकोनॉमिक स्टडी तो कर लेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स है क्या? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स firstly is a social science. It is not a science. It is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Basically, economics is a social science which studies how economic problems are solved. सिंपल वे में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। ऑफ कोर्स एग्जाम में लिख के ये नहीं आना है, एग्जाम में तो यही लिखना पड़ेगा, लेकिन सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूजेस which studies to limit uses limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among people। मतलब सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इनटू बेस्ट पॉसिबल यूज। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या है? दीज आर बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ओनली, है ना। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस करके एलोकेट करना है रिसोर्स को, कि कैसे एलोकेट करें किसको, स्केर्स रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल यूजेस में, कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो सके, क्योंकि ऑल वांट्स तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सो इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स इनटू बेस्ट पॉसिबल यूजेस टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अच्छा, एक और पॉइंट कि इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस क्यों बोल रहे हैं, एंड वाई इट इज़ नॉट अ साइंस, बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, एंड देयरफॉर इट इज़ सोशल साइंस एंड नॉट साइंस। ह्यूमन बिहेवियर ये स्टडी करता है, देयरफॉर इट इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट साइंस। इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग अगर देखें तो द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड oikonomikos, generate from the Greek word oikonomikos, which can be divided into two parts: oikos, which means home, and nomos, which means management. Does it means home management? कि होम कैसे मैनेज करें जब होम में पैसा स्केर्स है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। बेसिकली होम मैनेजमेंट जिसमें वॉन्ट्स जो है
अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। अब दोनों को मैनेज करके चलना है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो सके, है ना। सो इकोनॉमिक्स मीन्स होम मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स जो है उसके दो ब्रांचेस हैं, दे आर टू बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसकी इतनी यूटिलिटी है बस कि एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको वो समझना है बस। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द वेरियस इकोनॉमिक फेनोमेना। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द वेरियस इकोनॉमिक फेनोमेना, मतलब जो इकोनॉमिक फॉर्म फेनोमेना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर रहा है। अपने से कुछ ओपिनियन नहीं दे रहा है ये कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये इकोनॉमिक फेनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है ना। इट डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और वो कैसे ऑलरेडी सॉल्व्ड किए जा रहे हैं। अपने से कुछ नहीं बता रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करनी चाहिए, वो तो बता ही नहीं रहा है। ये बता रहा है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा रहा है अभी, है ना। इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वही कि डिस्क्राइब कर रहा है इकोनॉमिक फेनोमेना क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है जो ऑलरेडी हो रही है, that already exists. So it is based upon facts and does not give any value judgment. फैक्ट्स पे बेस्ड है कि क्या फैक्ट्स हैं अभी, क्या इकोनॉमी में चल रहा है अभी, क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब ये ऐसे फैक्ट्स पे बेस्ड हैं विच में नॉट नेसेसरली बी ट्रू बट इट कैन बी वेरीफाइड। एक ऐसा स्टेटमेंट जो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू है या नहीं है। आपने कोई स्टेटमेंट बोला कि इस साल तो बहुत ही कम बारिश हुई, बेसिकली इस साल 20 mm की बारिश हुई होगी। ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट हो सकता है आप सच बोल रहे हैं, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है 20 cm की बारिश हो, आप बोल रहे हैं 20 mm की बारिश हुई है, हो सकता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो ट्रू है, लेकिन उसको वेरीफाई किया जा सकता है। उसको मैं गूगल में जाऊँगा, टाइप करूँगा कि भाई कितनी बारिश हुई थी, या न्यूज़पेपर में देखूंगा कितनी बारिश हुई थी, तो वेरीफाई कर सकता हूँ मैं कि वो जो आप बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप अपने ओपिनियन के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे कि नेक्स्ट ईयर कितनी बारिश होनी चाहिए कि देश में सूखा ना पड़े। वो आपके ओपिनियन पे बेस्ड है, वो आप बोल रहे हैं कितनी होनी चाहिए, उससे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसे स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है जो फैक्ट्स पे बेस्ड हो, या जो डिस्क्राइब करे या एक्सप्लेन करे कि वेरियस इकोनॉमिक फेनोमेना क्या है, या रियल डिस्क्रिप्शन दे इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सबसे कैच वर्ड इसका जो है वो है कि इट कैन बी वेरीफाइड। अगर कोई स्टेटमेंट वेरीफाई किया जा सकता है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आएगा। आप बस ये याद रखिए, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली टू ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स के। बेसिकली ये यूज़ होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, है ना। उतना आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है आप एक्सप्लेन कर पाएँ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप एक्सप्लेन कर पाएँ, और कुछ अगर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, इट मे नॉट नेसेसरीली बी ट्रू बट इट कैन बी वेरीफाइड, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
Economic statements, normative statements cannot be verified. Now it deals with what the economy ought to be or how the economy should be. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व. तो ये डील करता है कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए. मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि ये कुछ ओपिनियन दे रहा है. पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स is basically based on opinion. It deals with what the economy ought to be or how the economic problems should be solved. है ना. It aims to determine the ideals कि मतलब कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए. इकोनॉमी कैसी है वो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब कर ही देगा जो रियलिटी है. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियल्स पे बेस्ड है कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए. है ना. इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन. तो अगर कोई चीज़ इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड है तो क्या उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर या गूगल से उसको वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं. वो तो आपका ओपिनियन है. ओपिनियन को भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या? कोई अगर स्टेटमेंट है, कोई आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि ये ऐसा था, तो आप गूगल मार के देख सकते हैं कि भाई ये सच में था या नहीं था. लेकिन कोई आपको कोई ओपिनियन दे रहा है कि ये तो ऐसा होना चाहिए, तो उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता. वो तो उसका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है. So normative economics is basically about individual opinions and hence it cannot be verified. It cannot be verified. It gives value judgment. कोई चीज़ का जजमेंट देता है कि ऐसा होना चाहिए था. What ought to be and what should be. How the economic problems should be solved. है ना. इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, irregular rains have led to suicide of 116 farmers so far this year. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि इट इज केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड. आप गूगल में जाके देख लेंगे कि फार्मर सुसाइड्स कितना हुआ था इस साल में, आपको पता चल जाएगा कि 116 है या 117 है या 112 है, जितना भी है. तो दिस फिगर इज केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट. तो वो फैक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अब ये ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन क्योंकि ये एक ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ और फॉल्स, इट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट. है ना. क्योंकि इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है. अब ये आदमी क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट शुड एनकरेज प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स. ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए. इसको क्या वेरीफाई कर सकते हैं? क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक ओपिनियन है ना. ओपिनियंस कैन नॉट बी वेरीफाइड, ओनली फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड. तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते. So positive statements are basically capable of being verified. Normative statements, on the other hand, are based on individual opinion and what the economy ought to be or how the economic problems should be solved, and hence they are not capable of being verified. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. अब रेजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी टू पे फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगी? क्या ये कोई ओपिनियन बता रहा है या कोई फैक्ट बता रहा है? फर्स्ट आप ये देखिए कि रेजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी टू पे फॉर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो उस स्टेटमेंट को क्या वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि टैक्स रेज करने से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? आप जाके अगर डेटा देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का तो आपको पता चल जाएगा कि अगर जब टैक्स वेल्दी पे रेज हुआ है तो इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. मतलब दिस स्टेटमेंट is capable of being verified and hence it is a positive statement. Second statement देखिए, programs like welfare reduce the incentive for people to work. Programs like welfare reduce the incentive for people to work. ये एक स्टेटमेंट है. क्या इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं आप जाएंगे वेरीफाई करेंगे डेटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब वेलफेयर प्रोग्राम्स जब जब आए
तो इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क कम हुआ या बढ़ा? मतलब दिस स्टेटमेंट ऑफ बीइंग इज केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड एंड हेंस इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज paying people who aren't working even though they could work is wrong and unfair. Paying people who aren't working even though they could work is wrong and unfair. मतलब आप एक वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, आप एक ओपिनियन दे रहे हैं. ओपिनियन आप एक दे रहे हैं कि अगर people who aren't working even though they are capable they could work is wrong and unfair, ये गलत है. तो ये आपका ओपिनियन है कि ये गलत है. हो सकता है किसी और के ओपिनियन में ये सही भी हो. क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि पीपल हु आरंट वर्किंग इवन दो दे कुड वर्क इज रॉन्ग एंड अनफेयर? क्या इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, आपका ओपिनियन है. इस ओपिनियन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते एंड देयरफॉर इट इज़ अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. ये द गवर्नमेंट शुड रेज टैक्सेस ऑन द रिच टू पे फॉर हेल्पिंग द पुअर. अब ये स्टेटमेंट में देखिए, ये ऑलरेडी बता रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड. तो ये अपना ओपिनियन दे रहा है एंड हेंस इट इज़ अगेन अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एंड नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. लास्ट स्टेटमेंट देखिए, रेजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ. कि अगर टैक्सेस वेल्दी पे ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी. दिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली सिमिलर टू दिस स्टेटमेंट जिसमें ये बता रहा है कि टैक्सेस रेज करने से वेल्दी पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर होगा. तो क्या इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं? इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा देख के कि टैक्सेस जब वेल्दी पे बढ़ाया गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुआ कि नहीं हुआ, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड एंड हेंस इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. है ना? तो एक रिवीजन करते हैं. इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन से. फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी हमने पढ़ा इट इज़ बेसिकली सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है जो पीपल को अपॉर्चुनिटी देगी कि आओ काम करो और पैसे कमाओ. और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सिस्टम जो है उसको 3 वाइटल प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे. द फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन एंड थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन. फिर हमने पढ़ा कि 3 वाइटल प्रोसेसेस होते क्या हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट को इलेबोरेटली देखा कि बेसिकली व्हाट दे मीन. उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है. इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है बिकॉज वी नीड टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. है ना? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस जो अराइज क्यों होती हैं. 3 रीजंस की वजह से. फर्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकंड इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड इज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. है ना? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. फिर हमने देखा कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड तो होती ही हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट दे ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़. है ना? तो सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर एंड व्हेन मोर इंपॉर्टेंट वांट गेट सेटिस्फाइड ह्यूमन बींग मूव टूवर्ड्स लेस इंपॉर्टेंट वांट्स. मतलब ये ग्राफ में जब आपके नीचे वाले वांट सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी आप धीरे धीरे ऊपर मूव करेंगे. अगर आपके नीचे वाले वांट सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप ऊपर मूव करेंगे ही नहीं. तो आपके वांट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के होते हैं. लेकिन अगर आपके वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो आप ज़िंदगी में कभी चॉइस ही नहीं कर पाते कि कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, कौन से वांट्स को नहीं करना है. फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स क्वांटिटी में अवेलेबल है. मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. है ना? रिसोर्सेज जितने चाहिए उसे स्केर्स क्वांटिटी में अवेलेबल है. तो हमें चॉइस करके लगाना पड़ेगा कि रिसोर्सेज जो स्केर्स हैं उन्हें कैसे लगाया जाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स अचीव कर सकें. फिर हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज स्केर्स तो हैं ही लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. कि भाई पेट्रोल है वो स्केर्स तो है ही लेकिन वो या तो व्हीकल में डाल लो या मशीन में डाल लो या रेलवे इंजन में डाल लो या एयरप्लेन में डाल लो, कहीं भी डाल लो. लैंड है तो लैंड को या तो कल्टीवेशन में लगा दो या ड्वेलिंग प्लेस बनाने में लगा दो या फिर बिल्डिंग या फैक्ट्री में लगा दो. तो ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो रही है. फिर हमने पढ़ा था
कि इकोनॉमिक्स स्टडी क्यों करना है वो तो समझ में आ गया, टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस क्यों है ना। फिर इकोनॉमिक्स की लिटरल मीनिंग क्या है, इट बेसिकली मीन्स होम मैनेजमेंट, है ना। सिंपली देखा जाए तो इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केसिटी। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन बेस्ड कौन सा है, फैक्ट बेस्ड कौन सा है, फैक्ट बेस्ड ये है, इंडिविजुअल ओपिनियन बेस्ड नॉर्मेटिव वाला है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है, नॉर्मेटिव कौन सी है। ऑफकोर्स पॉजिटिव स्टेटमेंट वही होगी जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वो स्टेटमेंट केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड नहीं है तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज ओपिनियंस आर नेवर वेरीफाइड। फिर हमने कुछ एक्सरसाइज करके देखा था कि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होगी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कौन सी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, क्या दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों सेम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।